اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سبجیکٹ انڈر ڈسکشن ہے لینڈ ریونیو رولز 1968۔ قبل ازیں اس کا مختصر تعارف سن لیں۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب نے یہ رولز بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 اس پر بہتر طریقے سے عمل درآمد ہے اور کچھ نئی چیزیں بھی متعارف کرائی گئی ہیں۔ اس کی اہمیت پہلے آپ لوگ سن لیں بیٹا۔ موسٹلی 80 to 90% جو سوٹس ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں سول کورٹس میں، ڈیکلریٹری سوٹس، جس میں اکثر جو ہمارے رورل ایریاز ہیں، پسماندہ ڈسٹرکٹس، وہاں پر انہیریٹنس کے سوٹس کافی زیادہ ہیں، جس میں خواتین موسٹلی پلینٹفس ہوتی ہیں کہ جی ہمارے بھائی نے یا والد نے ہمیں وراثت سے محروم کیا ہے۔ اس تناظر میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سول کوڈ نے پروسیجر دیکھنا ہوتا ہے، کیا ریونیو اتھارٹیز نے پروسیجر کو درست طور پر فالو کیا ہے یا نہیں کیا۔ تقریباً کافی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اسی کے گرد ہی سارا کیس گھوم رہا ہوتا ہے کہ کیا اگر خاتون، اکثر یہ ان پڑھ عورتیں ہوتی ہیں، دیہاتی، ان کی پلی یہی ہوتی ہے پلینٹ میں کہ جی ہمیں شہر لے گئے، بینک سے قرضہ نکلوانا ہے یا کسی اور دفتر میں، تو میرے بھائی نے یا والد نے انگوٹھا جات ہم سے لگوا لیے، ہم ان پڑھ عورتیں ہیں۔ جب یہ پلی لے لیتی ہیں تو پھر عدالت نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عورت کی کیا فری کنسنٹ ہے، کیا اس کو اعتماد حاصل تھا، اور جو علاقے کے معززین علاقہ ہیں کیا وہ بھی ان پروسیڈنگز میں شامل تھے یا نہیں تھے۔ بیٹا اس کے علاوہ آفیشیل ورکنگ ہے ریونیو آفیشلز کی، کہ جو ریونیو کے افسران ہیں اور ریونیو کلرک ہو گئے جیسے پٹواری وغیرہ، یہ کس طرح کام کرتے ہیں، ان کو کس طرح کام کرنا چاہیے، یہ بیٹا بتایا گیا ہے۔ اور میوٹیشنز کا بھی طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ انتقال، ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی، پارٹیکولرلی ایگریکلچرل پراپرٹی کا انتقال کیسے ہوگا، بیٹا یہ اس میں چیزیں شامل ہیں، اور اختیارات بھی ہیں اور طریقہ کار پروسیجر جو ریونیو آفیسرز نے فالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اپوائنٹمنٹ آف لمبردار ہے، یہ ایک انتہائی اہم عہدہ ہے ہمارے ہاں موسٹلی جنوبی پنجاب میں۔ اس کو بہت عزت کی نگاہ سے پہلے دیکھا جاتا تھا، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم اس کے بھی وقار میں تھوڑی بہت کمی آ گئی ہے، اب یہ پہلے جیسا باروب عہدہ نہیں رہا۔ بیٹا آج ہمارے رولز انشاءاللہ تعالی 1 سے لے کر 20 تک ہوں گے، انہی کے گرد ہی ہمارا ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد پھر نیکسٹ ہم دیکھ لیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے شروع میں، جیسے ہے ڈیفینیشن پورشن۔ بیٹا یہ گزارش کرتا جاؤں، اتنا وضاحت کے ساتھ باریکی میں نہیں جاؤں گا، پہلے لینڈ ریونیو کے لیکچرز یوٹیوب پر سارے پڑے ہوئے ہیں، چیپٹرز سیکشنز کی ترتیب سے ہر چیز کو بہت زیادہ مور دین سیٹسفیکشن بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگ، میری گزارش یہی ہے کہ ان کو سن لیں، پھر اس کے بعد یہ رولز آپ کو سمجھنے پڑھنے میں کافی زیادہ آسانی ہوگی۔ بیٹا یہ ہمارے جو سیکشنز وغیرہ شروع ہو رہے ہیں،
اس کے رولز. پہلے ڈیفینیشن پورشن ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد یہ پارٹ 2 ہے اور رول 3 ہے، اسٹیٹمنٹس اینڈ پلیڈنگس ٹو بی بریف. مختصر سن لیں بیٹا. یہ اپلیکیشنز وغیرہ یا پلیڈنگ یا کوئی درخواست وغیرہ دیتے ہیں ریونیو آفیسر کے سامنے فری کین، تو قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ لکھی جائیں، کہ مقصد اپنا بیان کریں، جو ضروری چیزیں ہیں وہ درخواست میں آنی چاہیے. ایون دین یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر زبانی بھی بات کرنی ہے تو اختصار کے ساتھ کریں، جامع موضوع. بہتر بات کہ آپ دوسرے کو اپنا مقصد سمجھا سکیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. پریسائز ہونی چاہیے گفتگو ریونیو آفیسرز کے ساتھ، چاہے تحریری ہے یا زبانی ہے. بیٹا یہ 3 اسی چیز کو ڈیل کرتا ہے. 4 پہ آپ آ جائیں، ویریفیکیشن آف اپلیکیشنز. بیٹا اس کا طریقہ کار وہی ہے جو ہمارا CPC میں بیان کر دیا گیا ہے پلینٹ کا. جب آپ ریونیو افسر کو مثال دے رہے ہیں بیٹا، قبضہ حاصل کرنا ہے زمین کا یا تقسیم کرانی ہے ایگریکلچر پراپرٹی، اس کے لیے درخواست وغیرہ جب آپ دیں گے تو CPC والا پروسیجر فالو کیا جائے گا ویریفیکیشن کی حد تک. اس کے بعد بیٹا ہمارا رول 5 ہے، یہ کہتا ہے کہ جب اگر فری کین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیورنگ دا پروسیڈنگز بیفور دا ریونیو آفیسر، یا کسی خاتون کی شادی ہو جاتی ہے، وہ کسی اور علاقے میں چلی جاتی ہے، تو پھر ریونیو آفیسر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جو ان کے ورثہ ہوں گے ان کو وہ امپلیڈ کر سکتا ہے، ان کو وہ پارٹی بنا لے گا. ڈیتھ ہو جاتی ہے یا شادی ہو جاتی ہے تو یہ بھی بیٹا وہی طریقہ کار ہے جو ہمارے ہاں نارملی CPC میں فالو کیا جاتا ہے. اب اس کا فکسنگ ڈیٹس وغیرہ میں یہ بھی بیٹا آسان سا ہی ہے. جب ریونیو آفیسر اپنی کارروائی کر رہا ہے، ڈیٹس، ایجرنمنٹس وغیرہ، گواہان سے متعلقہ اگر یا پھر کوئی درخواست وغیرہ خارج کر دی گئی ہے تو وہ بھی CPC کے مطابق ہی سارے اصول و ضوابط اختیار کرے گا. اس کے بعد بیٹا یہ ریمانڈ آف کیسز انتہائی اہم چیز ہے، اس کو بہت غور سے سن لیں. بار بار سیکشن آ رہا ہے کیونکہ ہم نے سیکشن پڑھے ہیں بیٹا. رول 6A میں آپ لوگ دیکھیں کہ جو سیکشن 161 اور 164 ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کا، 161 بیٹا اپیل کو ڈیل کرتا ہے، 164 ریویژن کو ڈیل کرتا ہے. تو حکم دیا گیا ہے اتھارٹی کو جس کے پاس اپیل ہے یا ریویژن ہے کہ وہ ریمانڈ نہیں کریں گے کیس کو. یہ ایک انتہائی اہم بات ہے کہ یہ ریمانڈ نہیں کریں گے. ہاں بورڈ آف ریونیو ریمانڈ کر سکتا ہے. اب ایک دلچسپ سوال پیدا یہ ہوتا ہے، آگے اس کا نیکسٹ پروسیجر بھی آ رہا ہے، ریمانڈ تو نہیں کر سکتے لیکن کوئی فیکچول کنٹروورسی آ گئی ہے، کچھ ایسے فیکٹس ہونے چاہیے تھے جو پلیڈنگ میں ہیں، فیصلہ میں ان کو ٹچ نہیں کیا گیا یا ان کا جواب فیصلے میں نہیں ہے. کون سا فیصلہ؟ جو انڈر اپیل یا ریویژن ہے. اس کا کیا طریقہ کار ہے بیٹا؟ یہ نیکسٹ آگے B میں بیان کر دیا گیا ہے، سبجیکٹ ٹو کلاز A. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اتھارٹی ہے اپیل والی یا ریویژن والی، وہ فائنلی اس کو ڈٹرمن کر سکتی ہے. کیسے ڈٹرمن کر سکتی ہے بیٹا؟ اس کو ذرا تھوڑا سا پڑھ لیں. The appellate or the revisional authority, as the case may be, shall finally determine the case notwithstanding that the impugned order proceeds upon a ground other than that on which the appellate or revisional authority proceeds. اس کو بیٹا انتہائی اہم طریقے سے سمجھ لیں. اب یہ C میں آ جائیں. Where the impugned order has omitted to decide a question of fact. یہی بات بیٹا اصل کہ امپیون آرڈر میں
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के मुतलका कोई गलती हुई है जो अथॉरिटी को नज़र आता है कि इसका फैसला ज़रूरी हो जाना चाहिए था, फिर ये अथॉरिटी का अख्तियार है कि अथॉरिटी रेवेन्यू ऑफिसर जिसका फैसला चैलेंज किया गया है, जिसने फैसला पास किया है, कि वो अपनी फाइंडिंग दें उस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर, उस फैक्चुअल कंट्रोवर्सी पर, कि उसमें वो शहादत भी लिख सकता है। कौन? रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर का ये अख्तियार है कि उसमें वो शहादत भी लिख सकता है जिस मामले का अथॉरिटी उसे पूछ रही है। नेक्स्ट बेटा देखें, द एपिलेट आर द रिव्यूनल अथॉरिटी एज द केस में बी shall after considering any objections which may be preferred against such finding by a party within a time to be fixed by the said authority proceed to decide the case। अब देखें, कोई अगर एतराज़ात वगैरह आते हैं, अब देखें ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को कि अपील है या रिवीजन है, कमिश्नर साहब सुन रहे हैं या डिप्टी कमिश्नर साहब सुन रहे हैं, उन्होंने नीचे के अफसर को हुक्म दिया है कि जी फैक्चुअल जो भी है मामला उसको आप डिसाइड करके मेरे पास भेजें। जब वो मामला डिसाइड होके उस अथॉरिटी के पास आएगा तो फरीकैन को सुना जाएगा कि जी आप लोगों का इस पर क्या मौक़िफ़ है। इस पर बेटा ये है हमारा। इसमें मज़ीद आगे लिखा गया है कि अथॉरिटी ख़ुद भी एविडेंस लिख सकती है या नीचे कह दे कि जी एविडेंस लिख के हमारे पास भेज दें। ये बेटा तकरीबन वही है जैसे ये हमारा सिविल में है, हमारे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब हो गए या ऑनरेबल हाई कोर्ट, उनका भी अपील और रिवीजन का तकरीबन यही होता है प्रोसीजर। वहाँ रिवीजन में तो इतने ग्राउंड्स नहीं होते, वहाँ अपील में अलबत्ता हैं कि वो नीचे जो मातहत अदालत है उनको कोई ख़ास हुक्म कर सकते हैं। इसमें भी बेटा वही चीज़ आ गई है। अब रूल 7 को देख लें, कमीशन का CPC वाला वही तरीक़ाकार है कि अगर कोई शख्स पेश नहीं हो सकता किसी वजह से तो रेवेन्यू ऑफिसर कमीशन भी अपॉइंट कर सकता है किसी शख्स को कि जाके उसका बयान लिख लें। कोई खातून है या कोई बीमार है जो रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश नहीं हो सकता, तो इसमें ये बताया गया है कि जी कौन होना चाहिए, प्रेफरेबली कोई MPA, कोई MNO, MNA या कोई मशहूर मोतबर आदमी उस इलाके का। अब गवान के जो अखराजात वगैरह हैं वो पार्टीज़ पे करेंगी, जो CPC में बेटा तरीक़ाकार बताया गया है। अब ये नेक्स्ट चीज़ देख लें, रिकॉर्ड ऑफ म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स। बेटा इंतहाई अहम चीज़ है कि जब रेवेन्यू ऑफिसर ने इंतकालात पास करने हों तो उसका क्या तरीक़ाकार है। बेटा ये प्रोसीजर वेरी सिंपल, पहले सुन लें। अगर कोई देहात है ना, तहसील लेवल की हम बात कर रहे हैं, जैसे कल हम बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, तहसील है नौशहरा विरका, वहाँ के कोई देहाती लोग हैं, एक शख्स ज़मीन बेचना चाहता है, दूसरा ख़रीदना चाहता है। वो जनरली पहले पटवारी के पास आ जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि जी इस तरह हमने लेन देन किया है, तो वो रोज़नामचा में पटवारी अंदराज कर लेता है। उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई हो करने के बाद तहसीलदार साहब के पास सारा मामला पटवारी साहब पुट कर देते हैं। उसके बाद तहसीलदार साहब फिर जलसा आम करते हैं, उस इलाके में जाते हैं, उस ज़मीन पर जाते हैं जो बिकी है, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को इकट्ठा करते हैं, उनका मौक़िफ़ सुनते हैं, लेन देन से सब कुछ मुतल्लिक़ा। उसके बाद बेटा फाइनली इंतकाल पास हो जाता है। ये है एक आम तरीक़ाकार इंतकाल का। रजिस्ट्री का कुछ और है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की, वो यूँ है कि रजिस्ट्रार साहब होते हैं, ये भी मोस्टली तहसीलदार लेवल का आदमी होता है। इसके दफ्तर में फ़रीक़ैन आते हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह, तस्वीर वगैरह चेक करते हैं, तस्वीर बनाई जाती हैं, इनके बयानात लिखे जाते हैं। रजिस्ट्री की अमूमन फ़ीस ज़्यादा होती है, सारा रिकॉर्ड वगैरह देखकर उसके बाद वो कहते हैं जी हमारी रजिस्ट्री हो गई है, ठीक है जी ज़मीन बिक चुकी है। बेटा अब आजकल पंजाब में जैसे, वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कभी बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन अभी मुख्तसर सुन लें।
एक नया ऑफिस एस्टेब्लिश हुआ है पिछले कुछ सालों से, ADLR, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड। बेटा ये एक रेवेन्यू में ना मुकम्मल चेंज आ गई है पंजाब में। पहले पटवारी के पास फ्री कैन जाते थे, तहसीलदार साहब के पास, अब एक सारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम आ चुका है जिद्दत के साथ IT सिस्टम के ताबे। अब ये ADLR एक अफसर होता है, उसके पास तहसील या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यू सारा कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। वहाँ फ्री कैन चले जाते हैं, अपने बयानात देते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड चेक होता है, वहीं पे बयानात होते हैं, फीसेस वगैरह पे होती हैं। तो इस तरीके से अब इंतकालात हो रहे हैं। पंजाब में थोड़ा सा इशू आ रहा है, खासकर जो सिटीज़ हैं, तहसील या डिस्ट्रिक्ट या फिर कुछ और मौजा जात हैं, वहाँ अभी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं हुआ। वहाँ ये पटवारी वाला ही सिस्टम अभी तक बेटा फॉलो हो रहा है। अब हम आ जाएं रूल 9 की तरफ। अब वही बेटा ये सेक्शन 42 का जो तकाजा है लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक कि जब बयानात लिखे जाएंगे गवाहान के रेवेन्यू ऑफिसर के सामने, तो रेवेन्यू अफसर साहब उनके बयानात लिखेंगे। जनरली जो बेटा बयानात होते हैं कि जी मैंने ज़मीन बेच दी है, इतने में बेची है, फ़लाँ को दी है, इतने पैसों में दी है, अगर बेची है ठीक है, अगर गिफ्ट किया है, अदरवाइज़ कोई भी सूरत हाल है, तो फिर उसी हिसाब से फ्री कैन बयान देते हैं। अब इसमें भी वही तरीक़ाकार है कि अगर अदालत की डिक्री से इंतकाल करना है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी है, तो फिर ये प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वो रेवेन्यू अफसर उसका अंदराज कर देता है। इनहेरिटेंस में ज़रा एहतियात की गई है कि कम अज़ कम 2 मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हों, लंबरदार हो गया, जो हमारे काउंसलर चेयरमैन टाइप लोग होते हैं, मारूफ, और ख़वातीन उनके करीबी रिश्तेदार, अगर खातून शादीशुदा है, उसका हस्बैंड हो गया, उसका बेटा या बेटी, ये बेटा एक तकाजा है कानून का। और ये भी अब मज़ीद आ गया है कि उनका स्कूल ऑफ थाट मसलक भी लिखा जाएगा कि अगर जायदाद वगैरह कौन किसको दे रहे हैं, अगर कोई ट्रांसफ़र है, गिफ्ट है, कोई भी सूरत हाल है, अहले तिशी हैं, अहले सुन्नत हैं, इस हवाले से बेटा ये तकरीबन यही चीज़ें हैं, इसको आप ज़रा पढ़ लें। वरासत का कहा गया है कि 40 दिन तक इसका भी अंदराज नहीं होगा, 40 दिन के बाद इसका अंदराज किया जाएगा। दूसरी बेटा ये प्रोसीडिंग्स आ गई, रिकॉर्ड ऑफ अदर प्रोसीडिंग्स, इसको आप देख लें कि 141 के अलावा जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। आर्डर्स के बारे में ये बताया गया है, इख्तिसार के साथ आर्डर वगैरह लिखे जाएंगे मेरिट्स पर जो भी हैं, जो एक कानूनी तकाजा है। कास्ट के बारे में है, कोई पैसों की वसूली है, कैसे अदायगी होगी, रेवेन्यू अफसर साहब इसका एक शेड्यूल तरीक़ाकार दे देंगे पार्टीज़ की आसानी को मद्देनज़र रख कर। बेटा ये इजेक्टमेंट वगैरह से मुतल्लिक़ है कि अगर बेदखली करनी है, कब्ज़ा छुड़वाना है किसी एक फरीक से, वो CPC वाला प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और रेवेन्यू अफसर को अगर किसी तरह का कोई मसला आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो CPC में तरीक़ाकार है वही अख्तियार करेंगे। अक्सर पुलिस हेल्प का होता है, पुलिस की भी हेल्प ली जा सकती है, वो एक तरीक़ाकार है प्रोसीजर के ताबे। DPO साहब को अमूमन जनरल रिक्वेस्ट जाती है, वो फिर SHO साहब या दीगर पुलिस मुलाजमीन को लगा देते हैं कि जी इनसे कब्ज़ा वगैरह छुड़ाया जाए। चार्जेस वगैरह का बेटा ये है कि जो भी अखराजात होते हैं, तलबाने वगैरह, वो फ्री कैन पार्टीज़ खुद ही अदा करेंगी। अब हमारा लास्ट आ रहा है बेटा विलेज हेडमैन, लंबरदार, जिसे हम आम तौर पर एक इलाकाई ज़बान में नंबरदार कहते हैं, हालांकि असल लफ्ज़ है लंबरदार। बेटा मौज़ा जात में तकसीम किया गया है हमारा पंजाब। लाहौर सूबा पंजाब का हेड है, उसके बाद डिवीज़न्स हैं, लाहौर बेज़ात ख़ुद भी डिवीज़न है। डिवीज़न्स को बेटा आगे तहसील्स में तकसीम कर दिया गया है, डिवीज़न्स को डिस्ट्रिक्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स को तहसील में। हर तहसील में बेटा मौज़ा जात हैं सिवाय शहर के, वो सिटी एरिया कहलाता है।
म्यूनसिपल एरिया जो आ जाता है वहाँ पर ये लैंड रेवेन्यू की एप्लीकेशन नहीं होती। बाकी जितने भी विलेजेस हैं, देहात हैं, वहाँ ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। वहाँ पर ज़मीन को बेटा तकसीम मौजा जात में किया गया है या चकूक में। अब ज़रूरी नहीं है कि लंबरदार हर मौजे का हो। कुछ ऐसे भी पंजाब में मौजा जात हैं वहाँ पर बल्कि बेटा ये गुजारिश करूँगा, लंबरदार तो हर मौजा जात में हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सहूलियात फ़वाइद हर मौजे में लंबरदार को हों, हर मौजे में हों। अगेन रिपीट करूँगा बात को, बेटा लंबरदार तो हर मौजा जात में हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रकबा मिलता है। 25 बीघे था 12.5 एकड़। कुछ और सहूलियात ये कुछ मौजा जात में हैं, तमाम में नहीं हैं। हर लंबरदार को गवर्नमेंट की तरफ से तमाम सहूलियात हासिल नहीं हैं इन फॉर्म ऑफ ज़मीन रकबा। तो इसमें चाम पहले कुछ इस तरह से था कि रकबा मिलता था, शान व शौकत, इज़्ज़त थी। उन मौजा जात में अभी तो है, लेकिन जिन मौजा जात में गवर्नमेंट का रकबा नहीं है, लंबरदार के पास इखराजात हैं या लंबरदार की फ़िनंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो वहाँ ये अब इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। तो बेटा ये लंबरदार को अपॉइंट कैसे किया जाता है? काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, इज़्ज़त, मकाम, रुतबा, तालीम, वरासत। पहले लंबरदार कौन था, उसका रकबा कितना है, फ़िनंशियल पोजीशन क्या है, असर व रसूख कितना है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर लंबरदार साहब की अपॉइंटमेंट की जाती है। इसके बेटा मार्क्स वगैरह एक लिहाज से किए गए हैं। अब इसमें ना आप मुख्तलिफ देखेंगे कि बेटा कुछ ऐसे भी मौजा जात हैं जहाँ प्रॉपर्टी सारी गवर्नमेंट की है, वहाँ पर रेंट पे, लीज़ पे गवर्नमेंट ने दी हुई है। मुख्तलिफ नेचर की प्रॉपर्टीज़ हैं हर मौजा जात में। कुछ में प्राइवेट सारी मलकियत है, कुछ में गवर्नमेंट की मलकियत है। जहाँ प्राइवेट मलकियत है वहाँ जो प्राइवेट मालिक होंगे ज़मीन के, लंबरदार उनमें से वही आएगा। जहाँ सारी गवर्नमेंट की मलकियत है वहाँ से फिर लंबरदार जो टेनेंट होगा वही आएगा। ये बेटा आम तौर पर उसका तरीक़ाकार है। बाकी वज़ाहत में आप लोग खुद इसको पढ़ लें। तो बेटा ये इसके मार्क्स वगैरह हैं कि जी कितने दिए जाएंगे। इनका ना मेरिट बनता है कि कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन है, इसके कितने मार्क्स हैं। बेटा डिप्टी कमिश्नर साहब इसको अपॉइंट करते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जनरल इसका सारा प्रोसीजर वगैरह फॉलो करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि डीसी साहब अपने कुछ अख्तियारात इसी साहब को दे दें। इस हवाले से बेटा ये सारा इनका क्राइटेरिया चलता है। ये सारी चीज़ें इसी में दी गई हैं। अब उसके बाद आप डिसमिसल को देख लें कि इसको डिसमिस कब किया जाएगा। दस्तबरदार खारिज इनकी ज़िम्मेदारियों से अगर उनको सज़ा हो जाती है, इखलाकी रवैया किरदार उनका ठीक नहीं रहा, ज़मीन बेच दी है, गुर्बत का शिकार हो गए हैं, मसाइल आ गए हैं फिनंशियल, इन हालात में फिर बेटा इनको डिसमिस किया जा सकता है। इससे फिर नया लंबरदार कैसे बनाया जाएगा, वही तकरीबन तरीक़ाकार है जो पहले बेटा आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये बेटा तकरीबन 20 तक इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द हमारा घूमता है। रूल्स 1 से लेकर 20 तक कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि आप लोगों को दोबारा वजाहत के साथ बयान की जाए। तो बेटा अगेन थोड़ा सा यही गुजारिश करूँगा, लैंड रेवेन्यू एक्ट को ज़रा रिपीट कर लें, और इसमें से अक्सर सवाल आता है। अदरवाइज़ बतौर सिविल जज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को बहुत तरक्की दे, या आप लोगों में से कुछ लोग तहसीलदार वगैरह बन जाएं। बेटा ये कानून एक बेसिक है, हद से ज़्यादा इसकी अहमियत है पूरे कानून की। ये बहुत ज़्यादा घूम रहा है हर चीज़ के गिर्द बतौर सिविल कोड के। फिर वही मैं लैंड रेवेन्यू एक्ट का बेटा कह रहा हूँ ना, सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड 70-80% सिविल जज साहब का जो वास्ता है रेवेन्यू रिकॉर्ड से है। जब तक आपको रिकॉर्ड पढ़ना नहीं आएगा बेहतरीन तरीके से अच्छा फ़ैसला नहीं हो सकता। बेटा इन गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।